a place and time, tide will turn. A very enthusiastic morning, Napoleons. For most admired Reverend Father Charles Casey, respected teachers, caring sisters, and all my dear Napoleons. Today, we, the students of class 7th A, are here to showcase our talents through our special assembly based on a very relevant topic, that is, never give up. But before starting our program, may I invite our beloved principal, Reverend Father Charles Casey, to come on the stage and witness our program. Please, Father. I would also like to invite our choir group to sing a welcoming song. Now, I request everyone to be seated and enjoy. Good morning, Napoleons. Welcome to D News. Here are some national news. Nepal is hosting an international symposium, Partnership for Technology in Peacekeeping on
Cited by Russia, Roger Water tells UN Ukraine invention illegal. Russia asks Pink Floyd's Roger Waters to speak Ukraine arms at UN. Hope fading as deaths in Turkey, Syria quick near 12,000. 10 Indians stuck in remote areas of quick heat but safe. 782 hectares of land encroached upon 6.84 hectares retrieved in 2022 to 23 railways. Now, let's catch up with some sports news. Gill should get nod. Vice captain should not be automatic choice, says Shastri. Whoever falls Surya Kumar, they fall in love with his ability, says Sachin Tendulkar. This Aussie team does not carry baggage of past, says Pat Cummins. Virat Kohli stepped closer to another record versus Australia. Now some local news are Defense Minister Rajnath Singh, Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan to distribute free land to 25,000 poor in Singrauli. Leopard kill the farmer, shoot the man-eaters in Burdwan. 536 new posts created for 8 new degree colleges. 6 trashed by mob on suspicion of cow slaughter. Today is the special assembly of class 7A. Thank you. Present here. Today, on this special occasion of the special assembly of class 7A, I would like to express my views on our topic, never give up. Don't fear failure, rather fear not trying, said by Roy T. Bennett. Success does not happen in the first day. We should keep trying to reach success in life. Life is a race which is all about winning. But winning is not only the end point. We must understand that no one has made great achievements in the first day. Failure is not the option for anyone. Even though you failed in the process, you must stand up and do it again. We all have heard these lines. Failures are the stepping stones of success. We would have heard about the great scientist Thomas Alva Edison. His success story is really motivating. Edison on his experiment to refine a light bulb failed 1,000 times, but confidently said that I didn't fail 1,000 times. I found 1,000 ways how not to make a light bulb. This proves that success cannot be attained in the first day. It is not everyone's cup of tea. It requires lots of sleepless days and nights, lots of sweat, and a great amount of hard work. It can only be achieved if you don't give up at a small failure you face in the process. At last, I would like to sum up my words by just saying that winners never quit and quitters never win. Thank you and have a motivational day ahead. Actions speak louder than words. Everyone must have heard this proverb once in their lifetime. So, to manifest you more about our topic, here comes our skit group with a skit based on the life of Srinivas Ramanujan. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कार्य करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसा नाम जो गणित के इतिहास में पूरे विश्व में चमकते सितारे के रूप में जगमगाता रहा। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के एक कोयम्बटूर जिले के इरोटामा गांव में एक गरीब हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो एक स्थानीय कपड़े की दुकान में कर्मचारी थे, एवं इनकी माता का नाम कोमल नम्मर था, जो एक गृहिणी महिला थी। बालक रामानुजन को गणित का विषय अत्यंत प्रिय था। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। उनके सहपाठी तथा शिक्षक उनसे बहुत ही प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे
सुप्रभात सर। सुप्रभात बच्चों, आप लोग अब बैठ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे नंबर किसे कहते हैं। Sir, a number is an arithmetical value expressed by a word, symbol or figure representing a particular quantity. रामा, पूछने पर ही बताओ, दूसरे बच्चों को भी समझने दो। अच्छा बच्चों, नंबर के भी कई प्रकार होते हैं। अब मैं आपको उनके प्रकार के बारे में बताऊंगा। Sir, number has many types like even number, prime number, odd number, etc. रामा, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, पूछने पर ही बताओ। अच्छा बच्चों, 3 केलों को 3 लोगों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने केले मिलेंगे? बहुत अच्छे। अब 1000 केलों को 1000 लोगों में बांटना है तो अब बताओ प्रत्येक व्यक्ति को कितने केले मिलेंगे? इसका मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर एक ही आएगा। Sir, मेरा एक सवाल है। जैसा कि आपने अभी कहा, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर एक आएगा, तो क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी एक आएगा? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, पूछने पर ही बताओ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो प्रधानाचार्य महोदय के पास। महोदय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, come in. सर, ये लड़का अपने आप को गणित में बहुत होशियार समझता है। इसकी वजह से पूरी क्लास के बच्चे हंसते हैं। सर, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम अपने आप को गणित में बहुत होशियार समझते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्या उसे सॉल्व कर पाओगे? क्या प्रॉब्लम है सर? टीचर्स का टाइम टेबल बनाना है। 1 महीने से कोई भी टीचर नहीं बना पा रहा है। सर, बताइए कुल कितने सेक्शंस और टीचर्स हैं? क्लास 1 के सेक्शन ए बी सी, क्लास 2 के ए बी सी सेक्शंस और इसी प्रकार क्लास 3, 4, 5 से लेकर क्लास 12 के 3 सेक्शंस ए बी सी के कुल 36 टीचर और 45 टीचरों की सब्जेक्ट और लिस्ट ये है। इसे ले जाओ। नया सेशन शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है। तब तक तुम टाइम टेबल बना लो और अगर तुमने मुझे सही टाइम टेबल बना के दिया तो मैं तुम्हारी क्लास 12 तक की पूरी स्कूल फीस माफ कर दूंगा। अच्छा सर, कुल 36 सेक्शन और 45 टीचर्स हैं ना? ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलो अब क्लास में। बच्चों, अब मैं आपको नंबर के बारे में और डिटेल से पढ़ाऊंगा। सर, टाइम टेबल बन गया है, क्या मैं इसे प्रधानाचार्य महोदय को दिखा सकता हूँ? अच्छा, फिर होशियारी। जिस टाइम टेबल को 1 महीने से कोई भी टीचर नहीं बना पाया, उसे तुम 5 मिनट में कैसे बना सकते हो? चलो प्रधानाचार्य महोदय के पास फिर से। महोदय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। सर, ये कह रहा है टाइम टेबल बन गया है। अच्छा, टाइम टेबल बन गया तो दिखाओ। लीजिए सर। वाह रामा वाह, आश्चर्य। इतना एग्जैक्ट और सही टाइम टेबल तुमने मात्र 5 मिनट में बना लिया। तुम एक जीनियस पर्सन हो रामा। मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में तुम अपना और अपने इस विद्यालय का नाम रोशन करोगे। तो आज से तुम्हारे क्लास 12 तक की पूरी स्कूल फीस माफ की जाती है और तुम्हें स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाती है। शाबाश रामा। धन्यवाद सर। शाबाश बेटा। बच्चों, क्या तुमको पता है? क्या सर? कि आज रामा ने अपनी क्लास और अपनी स्कूल की नाम रोशन कर दिया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद बच्चों। दूसरा दृश्य।
एसेलोनी की ट्रिग्नोमेट्रिक बुक है। यह तुम्हारे लेवल की नहीं है। तुम जाओ अपनी बुक पढ़ो। भैया क्या मैं इस बुक को एक दिन के लिए ले सकता हूँ? फिर पैसा लौटा दूंगा। अरे दे दो यार, चित्र देखकर लौटा देगा। धन्यवाद भैया। एक दिन बाद भैया मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली। अब आप इसमें से जो भी प्रश्न देंगे मैं उसे हल कर लूंगा। अच्छा लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। भैया हो गया। रामा, जिस प्रश्न को हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हल नहीं कर पाए उसे तुमने मात्र 2 मिनट में हल कर दिया। रामा, यू आर रियली जीनियस। आज से तुम हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे। धन्यवाद भैया। रामानुजन की गणित के प्रति रुचि दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई कि बाकी दूसरे विषय पढ़ना ही बंद कर दिए। परिणाम यह हुआ कि वे 10वीं की परीक्षा में गणित में फुल मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। उन्हें मिलने वाला स्कॉलरशिप भी बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें अपने आगे की कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। घर की गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन मैथमेटिक्स की पढ़ाई वे बिना किसी कॉलेज से अपने से करते रहे। बड़ी मुश्किल से उन्हें मद्रास बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। भाई लंच टाइम हो गया है, चलो लंच करने। चलो 1 घंटे की फुर्सत तो मिली, चलो चला जाए। अरे रामा, तुम्हें नहीं चलना है क्या? नहीं भाई, आप लोग जाइए। मुझे यही तो कुछ समय मिलता है जिसमें मैं कुछ अपने मैथमेटिक्स के थ्योरम प्रूफ करता हूँ। ऑफिस में काम करते हुए लंच टाइम में सारे कर्मचारी लंच करने चले जाते हैं, लेकिन रामानुजन अपना मैथ्स का प्रश्न हल करने में ही लगे रहते हैं। उसी समय सेंट फ्रांसिस टहलते हुए आते हैं, जो कार्यालय के हेड हैं। मंजर मेरे चुराने इन्हें दिखाना, जिस दिनों से वास्ता है मेरा रहमत का है फसाना, कागजों पे जैसे अरे रामा, सारे कर्मचारी बाहर लंच करने गए हैं, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सर, मुझे यही 1 घंटे का समय मिलता है जिसमें मैं कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।
रामा, ये तो मैथमेटिक्स के बहुत ही कठिन थ्योरम्स के प्रूफ हैं, जिसका हल आज तक किसी भी मैथमेटिशियन के पास नहीं है। रामा, यू आर अ जीनियस पर्सन। तुम एक हायर लेवल के मैथमेटिशियन हो। यहाँ तुम्हारे टैलेंट को समझने वाला कोई नहीं। तुम अपने मैथमेटिक्स के रिसर्च पेपर के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक पत्र लिखो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारे काम की सराहना करेंगे और तुम्हारे पेपर्स पब्लिश करा देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो तुम अपने समय का सदुपयोग करो। सर फ्रांसिस के अनुरोध पर रामानुजन ने अपने पत्र और साथ में अपने 50 महत्वपूर्ण थ्योरम्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेज दिए। रामानुजन के पत्र और रिसर्च पेपर को पढ़कर प्रोफेसर हार्डी बहुत प्रभावित हुए और वे रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रण भेजा। प्रोफेसर हार्डी के आमंत्रण पर रामानुजन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। वहां जाने के बाद रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को अपने 10 साल में लिखे करीब 3000 थ्योरम्स दिखाए। तो आइए देखते हैं नाटिका का अगला दृश्य। myself S. Ramanujan from India. Oh, Ramanujan from India? You are a great mathematician. मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ था, तो अब आप अपने सारे रिसर्च पेपर मुझे दिखाइए। सर, यह कुछ 3000 रिसर्च पेपर हैं जिसमें मॉड्यूलर इक्वेशंस और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। ठीक है, मैं इसे एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोफेसर के सामने रखूंगा। रामानुजन, मैं चाहता हूं कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के छात्रों को अपने थ्योरम्स के प्रूफ समझाइए और पढ़ाइए। ठीक है सर। ठीक है, तो कल से आप क्लास लेना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सर। मॉर्निंग सर। Ramanujan, you are a really genius person. एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोफेसर ने आपके रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कराने का निर्णय लिया है और आपको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी यानी FRS की उपाधि देने का भी निर्णय लिया है, जो कि बहुत सम्माननीय है। धन्यवाद सर। रामानुजन को FRS की उपाधि प्रदान करते हुए पेपर पब्लिश होने के बाद रामानुजन का नाम दुनिया के प्रसिद्ध गणितज्ञों में जाना जाने लगा। रामानुजन को उनके कार्य के कारण उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो मतलब FRS की उपाधि दी गई। FRS बनने वाले वे दुनिया के चौथे व्यक्ति थे। उनके पहले यह उपाधि केवल 3 लोगों को ही मिली थी, जैसे सर आइजैक न्यूटन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन और माइकल फैराडे को। लेकिन अपने काम के प्रति समर्पण के कारण रामानुजन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दे पाए और परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। उन्हें क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उन्हें लगा कि इंडिया आने के बाद तो वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य उनका मात्र 32 साल की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उनके कुछ रिसर्च जैसे मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन पैराडॉक्स और अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पाई गणित के इतिहास में क्रांति ला दी। सज्जनों, जीवन में बाधाएं रामानुजन का रास्ता न रोक पाई और वे अपने कार्य में लगे रहे। सच में आज के स्टूडेंट्स के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। धन्यवाद।
जो व्यक्ति जितना महान होता है उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्ट, शालीन और मधुरता से भरपूर होती है। तो मैं स्नेहा दुबे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे विषय पर एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष नेवर गिव अप टॉपिक के अंतर्गत एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम हमेशा कल्पना करते हैं कि मेरे सारे काम इस तरीके से हो जाए, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। और अगर आप एक कमजोर इंसान हैं तो आप हार मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सोच के मुताबिक नहीं होता। और अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सभी महान लोग में एक बात सामान्य होती है कि वे कभी हार नहीं मानते। आपको बहुत सारे ऐसे कार्य मिलेंगे जिनके अनुसार आपको लगेगा आपसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा कारण जिसके अनुसार लगेगा आप हो सकता है, कर सकते हैं, और सभी महान लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। वॉल्ट डिज्नी अखबार की कॉमेडी में काम करता था और उस अखबार के संपादक ने उसे नौकरी से निकाल दिया, ये कहके कि तेरे पास सोच की कमी है, तो किसी चीज की कल्पना नहीं कर पाता, तेरे पास अच्छे विचार नहीं है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कंपनी नहीं चली, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर उसने एक स्टूडियो शुरू किया, लेकिन फायदा इतना कम था कि उस स्टूडियो का भी दिवालिया हो गया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और फिर उसने एक स्टूडियो शुरू किया मूवीज इंडस्ट्री में कैलिफोर्निया में। स्टूडियो तो बच सका, लेकिन अब उसके निर्माता ने उसे धोखा दे दिया, उसके सारे पार्ट को चोरी कर लिए और उसके सारे कर्मियों को अपनी तरफ कर लिया। और अब उसने वॉल्ट डिज्नी को मौका दिया कि तुम उसके नीचे काम कर सकते हो। देखिए, अगर यहाँ कोई और होता तो या तो अपना बैग पैक करता और अपने घर चलाता, या तो कम तनख्वाह पर अपना काम करता। पर वॉल्ट डिज्नी औरों की तरह नहीं था, उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। फिर उसने अपना नया पात्र तैयार किया और वो था मिकी माउस। और जब उसने मिकी माउस को अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा चूहा, इसे देखकर तो सारी औरतें डर जाएंगी, सारे बच्चे डर जाएंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज बच्चा मिकी माउस को पसंद करता है, यहाँ तक कि औरतें भी पसंद करती हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने डिज्नी वर्ल्ड का नाम ना सुना हो। वॉल्ट डिज्नी की जीवनी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कैसे भी हालात हो, कितनी भी मुश्किल है, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता से इतना प्यार मत कीजिए, सफल होने की प्रक्रिया से प्यार कीजिए, उसके तरीके
मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन आपकी योजना कमजोर है, आपकी योजना सही नहीं है, तो निराशा मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं और बार बार निराशा मिलने से हमारा अपने लक्ष्य से विश्वास उठने लगता है। कई लोग कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि मुझे नापसंद करने वाले बहुत है, उनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, जो कि बिल्कुल झूठ है। आप जहाँ भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, आपके लिए फैसले की वजह से है। आप अपना 100% नहीं देते, अपना आत्मसमर्पण नहीं करते। आप अपना 50% निवेश करते हैं और 100% चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 100% निवेश भी करनी ही पड़ेगी। कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिबद्ध होना बहुत जरूरी है। वचनबद्ध होकर रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। एक ऐसी कला जिसने कभी न कभी कवि को हृदयहीन किया ही होगा। ऐसी ही एक सुंदर और प्रेरक कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हर्षित पांडे को। सुप्रभात। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, मैं हर्षित पांडे आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब जाग रहे तू सोता रे, किस्मत को थामे रोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे, किस्मत को थामे रोता रे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास में है उसे खोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे, सब जाग रहे तू सोता रे। लहरों में मोती चमक रहे, लहरों में मोती चमक रहे। झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, न तूफान कोई आने वाला। सब तह तक गोते लगा रहे। सब जाग रहे तू सोता रे, सब जाग रहे तू सोता रे। धूप तेरे सिरहाने है, धूप तेरे सिरहाने है। मौसम जाने पहचाने है। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाना है। सब जाग रहे तू सोता रे, सब जाग रहे तू सोता रे। माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है, भीतर से हिम्मत हारी है। सब जाग रहे तू सोता रे, सब जाग रहे तू सोता रे। धन्यवाद। पर कविता के बिना जीवन व्यर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित पांडे। अनुराग, Yes. it has been too long since I heard any rap. What are you talking about? Don't you know we have a fully fledged rapper in our class? Yes, I know. He's none other than Moin Afzal. So let's hear his rap. पहले बात बड़ी हुई थी मेरे में साइड दिमाग में रहता था। छाती पट्टी पहन के सालों से बेहतर था मैं स्पोर्ट्स में आ गया था। क्योंकि मेरा गंदा था। पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा दोस्त का बंदा था। मेरे दोस्त तो फिर बाइक थी, उस पे साइकिल थी। कोई पास नहीं आता था, जैसे जेब में मेरे साइकिल थी। मैं खेलने कूदने को जाता तो बाहर रहते मुझको, मैं 5 की टंकी पे जाता तो दिखा रहते मुझको ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी। डांस सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं थी। 2 बजे तक स्कूल, 3 साल का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन पर इल्यूजन से। मैंने कंसंट्रेशन वाली बात करी, मैं लिखता रहा मैंने दिन और रात करी। अब मैं और मेरा टैलेंट जंगल में 2 शेर रहते हैं। वो लोग मुझसे मिलते हैं आज और कहते हैं ओ भाई तू रैपर है, एक रैप सुना दे। मना मत करना भाई हो तेरा, अब इतना मत डरा। उनको देख के मैं सोचता हूँ ये वो तब कहाँ थे जब मुझे उनकी जरूरत थी। तब कहाँ थे हसन मेरी पत्थर की एक पूरत थी। कोई पैर मशीन ला दे मुझको, मैं वक्त में पीछे जाऊँगा। रैपर बनने वाला हूँ, सबको ये बताऊँगा। पहले मैं सबका भाई था, लोग कहते हैं दोस्त मुझे 5 साल से नहीं मिले। मैसेज करते रोज मुझे, फोन मुझे करते जाने कर मुझे कहते मैच पे आने वाला तू रैप का डॉन मुझे। आधी रात को फोन बजे, फोन की रिंगटोन बजे, एयरप्लेन पे डाल दो एमिनेम के सॉन्ग बजे। को पहले बाल खड़ी नहीं थे मेरे, ना ही मुझ पर गाड़ी थी, ना ही मेरे आवाज से शू वाली टोन आ रही थी। थैंक यू। One event left, and can you guess what it is? It's our mashup dance. So here I invite our team to entertain all of you. नींद
The theme, Never Give Up, perfectly fit into 7th A class because they were earnestly in search of getting a date to present their special assembly. We scheduled 3 times but had to drop due to various inconveniences. But last, as the topic stands, never give up, they never gave up. They stood firm, practiced, and today in front of us the result is there. So put us our hands together for 7th A class. Wonderful, thought-provoking program. Perfect blend of dance, speeches, poem, rap, skit, comparing everything. So I salute Vinod sir for preparing the class and bringing them together in order to motivate us and give us lot of inspiration through different personalities. Ramanujan's life story really motivated us. Some of the things even I was not aware. So these all are their hard work and lot of practice. To stage 3 dances is not an easy thing, but they did it. And there was a perfection in all the program. So hats off to 7th A class for bringing this wonderful morning visual and thought treat to Dapol family. So all the program items were wonderfully done. Thank you. God bless you. My dear children, here is going to end. This is the last special assembly event. I would like to take this opportunity to appreciate all the classes. Wonderfully practiced and done your assemblies. So many of you, not so many, all of you got chance to come over the stage and do something into your level. So appreciate you. And the confidence what you get from this is amazing. That you will never know now, later you will come to know. So today, I just want to share one thing from my personal life. 35 years back, when I was a 6th class student, I got a chance to speak over a function that was a farewell function of our art teacher. It was kept in my school in a very simple manner. Teachers, students and few parents were there. So I got a chance to speak a farewell speech to my art teacher. I was not such a orator that time. I got a chance, accidentally I prepared. It was a very small speech, 10 sentences only, Malayalam in our vernacular. But when I came over the stage, I saw the audience, teachers, parents. I got nervous. Even 10 sentences for me, what a big hazardous job. It's like a mountain standing in front of me. I somehow started my speech. There was a last sentence. It was like this. I cordially invite or welcome so-and-so teacher to her retired life. It was last sentence for that speech. But due to nervousness, fear, whatever be stage fear, I told the sentence like this. I cordially invite art teacher to my retired life. There was only a word mistake. To her retired life, instead I told to my retired life. There was a lot of fun, laughing. It was a bad day. Even days to come, children used to ridicule me, mock me, make fun of me. So that was my first appearance in the stage. From there, 35 years back, I am here in front of you. So never give up. That topic I want to enlighten today. In my life, that was my first speech. It was flop. I never gave up. Got lot of chances. Got the willpower, confidence,
and now I stand in front of you and I can speak. And I believe and I confidently believe that I can speak to the people, to the heart. So, what I want to tell you, my dear children, your attempts might fail. Your first attempt, second attempt, third attempts might fail. But never give up. There is a glorious future awaited for you if you persevere in your effort and never give up. One day, entire world will salute you and you will crack the history as a very successful and a very talented person. So once again, seventh children, thank you very much. And for all of you, all the teachers who worked hard to bring their children over the stage and throughout the year, bringing lot of programs, special assemblies for our school, for your improvement. Once again, put our hands together for all of us for this successful special event. Thank you. God bless you. Giving us such an opportunity for showcasing our talents. I would also like to thank our classmates, technical staff for contributing their efforts in making this assembly a remarkable one. I would also like to thank our class teacher Vinod sir who guided us throughout the program and made this assembly a remarkable one. I thank you all for watching us calmly till the end. Now I request everyone to stand up for the national anthem. Classes must time mark. Very good.